Good morning, students. In last video lecture, what we have seen the different terms related to the circle. हम क्या देखे हैं? Different term related to the circle. Today we will complete first exercise 10.1. After that we will see the next theorem. First is question number 1a. The center of a circle lies dash of the circle. Means center of circle कहाँ पे lie करेगा? Exterior or interior? Interior of the circle. So in fill in the blanks, first will be interior. क्या होगा? Interior. Dash. Question number 2. A point whose distance from center of a circle is greater than its radius lies dash dash of the circle. यानी बोला जा रहा है एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ रेडियस से ज्यादा है, तो वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा? इंटीरियर और एक्सटीरियर? इट विल ऑलवेज लाई इन एक्सटीरियर. सो इन क्वेश्चन नंबर सेकंड विल बी एक्सटीरियर. एक्सटीरियर. सी. The longest chord of a circle is, the longest chord of circle in last video lecture what we have discussed, the longest chord of circle is diameter. Diameter. D. An arc is a dash which ends at the end of diameter is called. An arc is a dash when it's in at the of a ends of a diameter. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल. जब आर्क्स डायमीटर पे एंड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल. E. The segment of a circle is the region between arc and radii of the segment. कौन सा आएगा? Chord of the circle and the chord of the circle. सेक्टर क्या आएगा? रेडिया. A circle divides the plane on its which lie into, यानी जो सर्कल है वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? It divides into 3 parts. कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स में. So F क्या हो जाएगा? 3 parts. Question number 2. Write true and false. Give reason for your answer. हमें true false भी लिखना है और reason भी लिखना है. The line segment joining the center to any point of a circle is known as radius. Yes. यानी yes. Because जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज द रेडियस सर्कल. यस, इट इज डेफिनेशन ऑफ द रेडियस. रीजन में क्या लिख दोगे? इट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेडियस. ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स. नो. ए हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड. नो. क्या बोला है कि ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कोड है? नो. Because there is numbers, because there is infinite number of points, so infinite number of codes will be there. If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc. If circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc, we can say that yes, all arc will be equal of length. यानी जब उसका लेंथ इक्वल हो जाएगा तो मेजर आर्क will be must be more than the half of the semicircle length. So this one will be no. A chord of a circle which is twice as long its radius, it is a diameter of circle. Yes. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ जाएगा? यस. द
यानी जो ट्वाइस ऑफ द डायमीटर ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज diameter. D is equals to 2r and the longest chord of the circle is diameter. A sector is a region between chords and its corresponding arc. No. Sector क्या होता है? Sector is region in between radii and arc. 6. A circle is a plane figure. Yes. Now we will see the theorems. Now theorem 1 is a statement. Theorem 1. Equal chords of a circle subtend equal angle at a center. यानी equal chords of a circle subtend equal angles at the center. हमारे पास क्या बोला गया है कि एक सर्कल है, एक सर्कल में दो कोड इक्वल है. सपोज दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर O. अब मान लो कोड एक ए बी है, ए बी, अनदर कोड है सी डी. अब ये क्या कर रहे हैं? एंगल फॉर्म कर रहे हैं. ये एंगल हो गया. सिमिलरली ये एंगल है. मीन्स एंगल AOB विल बी इक्वल्स टू एंगल COD. ये हमें प्रूव करना है. तो गिवन में हम लोग क्या लिख देंगे? A circle with center O in which chords AB equals to CD. क्या कोड AB equals to CD? अब हमें क्या करना है? टू प्रूफ. हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD. अब देखते हैं हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है? एंगल AOB या एंगल COD. देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? AB इक्वल्स टू CD. ये कोड हो जाएगा. उसके बाद AO इक्वल्स टू OC. क्यों? रेडियस. OB इक्वल्स टू OD. ये भी रेडियस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बाई SS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD. क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD. नाउ प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD V है. हमारे पास क्या है? AB इक्वल्स टू CD कोड लेंथ. AO इक्वल्स टू OC रेडियस. OB इक्वल्स टू OD रेडियस. क्या हो जाएगा? बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी. क्या होगा? बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD.
क्या हो जाएगा, AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, एंगल AOB विल बी इक्वल्स टू एंगल COD। यही हमें प्रूव करना था, कैसे नो, हमें यही प्रूव करना था कि एंगल AOB विल बी इक्वल्स टू एंगल COD। सो हमारा क्या था, थ्योरम नंबर 1 क्या था कि इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट ए सेंटर में क्या, यानी जब इक्वल कोर्स जो सर्कल का रहेगा वो क्या करेगा, सेंटर पे क्या करेगा, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, मींस इट विल मेक। तो हमने क्या ले लिया, सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया विद सेंटर हो, रेडियस क्या हो जाएगा R, और हमने कोड क्या ले लिया, AB ले लिया, और कोड क्या ले लिया CD, और हमने उसका क्या कर दिया, AO को ज्वाइन कर दिया, OB को ज्वाइन कर दिया, OC को ज्वाइन कर दिया, OD को ज्वाइन कर दिया, और गिवन है हमने लिख दिया ए सर्कल विद सेंटर O इन विच कोड्स AB इक्वल्स टू CD। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। प्रूफ में हम लोग ने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। तो AB इक्वल्स टू CD, ये कोड लेंथ हो गया, AO इक्वल्स टू OC, ये AO इक्वल्स टू OC ले लिया, OB इक्वल्स टू OD ले लिया। तो बाय SS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। उसके बाद बाय CPCT क्या आ जाएगा, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट थ्योरम। Theorem 10.2, theorem टू स्टेटमेंट क्या है, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equals, then the chords are equal। If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then chords are equal. This is the statement of the theorem 10.2. So let us draw first a circle with center O. अब हम कोड ले लेते हैं, ये A B C D। क्या बोला गया कि एंगल AOB, दिस एंगल इक्वल्स टू एंगल COD। गिवन क्या है कि ये सर्कल में एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, AB इक्वल्स टू CD। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ट्रायंगल AOB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, हमें ये प्रूफ करना होगा। उसके बाद बाय CPCT AB इक्वल्स टू CD हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, बाय CPCT AB इक्वल्स टू CD प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं,
गिवन क्या हो जाएगा, ए सर्कल विथ सेंटर O in which angle AOB equals to angle COD। क्या एंगल AOB इक्वल्स टू क्या है, एंगल COD। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB इक्वल्स टू CD। क्या प्रूव करना है, AB इक्वल्स टू CD। प्रूफ के लिए इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD VR हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, दिस वन इज गिवन। AO इक्वल्स टू OC क्या हो जाएगा, रेडियाई OB इक्वल्स टू OD, दिस इज ऑल्सो रेडियाई। क्या हो जाएगा, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय CPCT क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू CD। यानी हमने प्रूफ में क्या कर दिया, यहां पे प्रूफ में हमने ये ट्राइंगल ले लिया AOB, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल AO इक्वल्स टू OC। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। सिमिलरली क्या है, OB इक्वल्स टू OD, ये भी रेडियस हो जाएगा। यस, तो ये जब ये रेडियस, दो रेडियस इक्वल हो गया और एक एंगल हो गया, तो बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगी, ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बाय सीपीसीटी एबी इक्वल्स टू सीडी। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ थ्योरम 10.2। Now we will move to exercise 10.2. Recall the two circles are congruent if they have same radii. Prove that the equal chords of congruent circles subtend equal angle at their center. Congruent circles are those circles whose radii are same. So in question number 1, what is given? Suppose we have two circles, with first with center O, another with center O dash. यानी पहला सर्कल है विद सेंटर O, दूसरा है O डैश, और यहाँ पे कोर्स क्या है, AP और CD ये है, और इन दोनों की लेंथ इक्वल है, और AO OB विल बी ऑल्सो सेम, और O डैश C और O डैश D will be also same because the radius here given में क्या हो जाएगा, here circle with center O and center O dash are congruent circle. And AB equals to CD given.
क्या है, ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल सबटेंडर होगा मीन्स एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी डैश। प्रूफ के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, प्रूफ में अब देखते हैं। प्रूफ में नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश वी विल सी। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश वी है, हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश सी, रेडियन ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश सी, दिस इज ऑल्सो रेडियन। क्या हो जाएगा, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, किसके थ्रू, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी। ये हो गया। तो बाय सी पी सी टी क्या आ जाएगा, बाय सी पी सी टी एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ सेम एज क्वेश्चन नंबर थ्योरम, इट इज इक्वल्स टू थ्योरम 10.1। व्हाट इज द चेंजेस, चेंजेस क्या था कि उसमें एक ही सर्कल के अंदर दोनों कोड था, बट हियर व्हाट वी हैव टू डिफरेंट सर्कल। नाउ we will see question number 2. Question number 2. Prove that if chords of congruent circles subtend equal angle at their center, then chords are equal. अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि chords of congruent circle subtend equal angle at their center. So let us see question number 2. Again here the word congruent circle has been used, means two circle with equal radii with different center, यानी दो सर्कल अलग अलग होंगे विथ डिफरेंट सेंटर बट देयर रेडियस विल बी सेम। तो हमने सर्कल ले लिया ये ओ डैश। अब क्या है, कोड ए बी है और सी डी है। यहाँ पे क्या है, ए बी है और सी डी है। ये हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी। हमारा क्या है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन
हमने यहाँ पे क्या, वी हैव डन द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज given two circle with center O and O dash but with same radius means these two circle are congruent circle। और क्या है कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, हमारा क्या गिवन है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव AB इक्वल्स टू CD, मींस हमें प्रूव करना है AB इक्वल्स टू CD। सो प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, ट्राइंगल AOB, और इस सर्कल में हमारा क्या है, ट्राइंगल COD। क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD। तो ट्राइंगल AOB और OCD में कॉमन क्या है कि हमारा रेडियस सेम लेंथ का है, यानी रेडियस इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, AO इक्वल्स टू O डैश C, यानी रेडियस इक्वल हो गए। Similarly, OB is also radius, so it will be equals to O dash D। ये हो गया। उसके बाद what is given, angle AOB equals to angle COD dash। तो क्या हो जाएगा कि दो साइड वन एंगल से क्या हो जाएगा, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO dash D, बाय CPCT क्या हो जाएगा, AB equals to CD। So, what we have studied today? We have studied what we have done. First, we have completed the exercise 10.1. In 10.1, we have fill in the blanks and true and false. We have given reason for true and false, and then we have seen theorem related to the angle subtended by the chord. So, first theorem was the when chords of a circle are equal, then it will subtend equal angle at the center। theorem 10.2 क्या था, theorem 10.2 is the just converse of the theorem 10.1। मीन्स क्या था कि अगर एंगल subtended by the chord on the center are equal, then chords will be equal। तो ये था। अब उससे रिलेटेड हमारा क्या था कि in exercise 10.2 we have two questions in the exercise, and both questions are proof are same as the theorem 10.1 10.2, but in theorem we have taken only one circle, but in questions we have taken two circles because in questions congruent circle has been mentioned। Thank you, have a nice day, solve this problem in your notebook।